that's important. Yeah. So till now we have learned that whenever we speak in English, we use sentence. And we sometimes we speak in words, but that those are the shortcut ways. But we normally don't speak in words. We speak in sentences. And the second, we learned that in sentence we have noun, pronoun, adjective, adverb, verb. But sentence goes wrong. Sentence goes wrong when your verb is wrong. If you're even it is seen कि अगर आपको verb अच्छे से पता है ना, तो आप अपना लाइफ चला लोगे मतलब अगर मुझे पता है eat, तो मैं अपनी वाइफ को बोल सकता हूँ कि I eat, I can say that. तो वहां पे मैं in लगाऊं out, माने prepositions are also important, but मेन एक मेरे सेंटेंस को सामने वाले तक communicate करने में the most important thing is verb. In last class, we learned how to identify verb. First, we learned verb could be a time, which gives time, that is present, past, future. Second, we learned verb could be an action, like go, eat, play, run, speak, listen. These are the action. And third is verb could be time and action both. Like I went to, movie. So went is giving time, that is past, and went is also, giving action. कि मैं गया था. Today we are going to learn very important thing, and that is called verb family. Verb family. Like I have my family, you have your family. So Amnisha, how many members are there in your family? 4 members. 4 members. Okay. So, yeah. Dinobandhu, how many members do you have? Sir, I have a joint family. We have 16 members. Okay, that's great. So Sakshi, how many members do you have? Your voice is not reachable to me. Please unmute yourself. Okay. Sorry, sir. Sorry. Yeah. I have also joint family, so I have 17 members in my house. Okay. ये अलग से joint बोलने का क्या है? अगर आप बोलोगे कि 17 members, so it is well understood that it is a joint family. Okay, but it is fine. You want to communicate more effectively, इसलिए सारे information दे रहे हो. So guys, today we will be talking about verb family. So I will be sending you the PDF, whatever you want, I'll be sending you guys. So please don't waste your time in writing. Acha, can you see the screen? Yes, sir. Acha, can you see my face anywhere in the Yes, screen? sir. Yes, sir. Okay, fine. Chalo, theek hai. So, just a minute. So guys, today our topic is verb family. We already know that verb is clock, verb is action, verb is time and action both. But today we are going to talk about verb family. Like you have your family, even verb has its own family. Okay. Let's talk something. So, okay, so let's ask Jaya. So Jaya, how many members do you have in your family? I have 4 members, sir. 4 members. And who is the guardian of the family? The main guardian. My main guardian is my husband. Okay, good. So let's ask somebody else. So yes, let's ask Chandrasekhar ji. Yes, sir. Chandrasekhar ji, who is the main guardian in your family? Guardian is myself. I'm the elder in our family. I'm not. The guardian is it. It doesn't mean the elder one. Here, guardian means who takes the decision. Yeah. Who is the main member who takes the decision? Okay. Okay. So fine. In verb family, the guardian is mother. We call it mother verb.
So the guardian is mother verb. Now we'll see the mother gives birth to lot of verb forms. ये जो mother है ये main verb है. ये main verb बहुत सारे छोटे 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 verb forms को जन्म देती है. जैसे ये mother का जो first delivery होता है वो 2 होता है. एक present form 1 और एक का नाम होता है present form 2. So this is the first delivery जिसमें 2 जन है, present 1 and present 2. अब उसकी जो second delivery होती है, verb family की बात कर रहा हूं मैं, वो होता है past form. जो मदर फिर थर्ड डिलीवरी जो करती है उस थर्ड डिलीवरी का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो फोर्थ डिलीवरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. और जो आखिरी बार जो डिलीवरी होता है दैट्स अ फिफ्थ एंड द लास्ट डिलीवरी, that is called infinite form. So guys, you are right now watching the whole verb family starting from mother to infinite form. So now I would like to ask you one thing. Okay, let's ask Jaya, how many members are there in verb family? Have you noticed? Yeah, I noticed 6. 6 members. Okay. Anisha, how many members you have seen? 5 members. 5 members. बाप रे बाप, मतलब एक ही members को हमने देखा और कोई 6 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है. Yeah, Shraddha, how many members you have seen? We saw 1 member, that is mother. You have not seen some more, that the next mother delivers so many children, right? Like Yeah. here you can see the screen right now. Mother form, present 1, present 2, past, present participle, past participle, infinite form. So how many forms? 5 forms. 5 forms. 5 कितने forms. members हैं? कितने members हैं? Five. मदर फैमिली में कितने members हैं? 7 members. 4, 5, 6 देख के भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हो. 7 members, sir. Sir, there are infinite forms, sir. हाँ, infinite is also there. One of एक बच्चा जो है वो infinite के नाम से भी है यहाँ पे. 7 members. 6. 1 plus 6. You know, when you people are counting, बहुत लोग मदर को छोड़ के काउंट कर रहे हैं. 1 plus 6. मतलब जो गार्जियन है ना उसी को छोड़ दे के बाकी जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, बॉस आप गार्जियन को भी इंक्लूड करो ना. टोटल 7 सर. टोटल 7 मेंबर्स. अब एक चीज मैं बता दूं, राइट नाउ वी आर गोइंग इन अ वन वे. ऐसा नहीं है कि दूसरे वेज नहीं है, बट आप लोग अभी यहाँ पे आ रहे हो तो आपको इसी वेज के साथ मैं आपको समझाऊंगा. हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कुछ फॉर्म्स के बारे में पता है, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आपने कभी शायद सुनी होगी, राइट. अभी मैं वही बोल रहा हूँ, प्लीज आज के लिए थोड़ा अपने को ना 0 बना दीजिए. सोचिए मुझे कुछ नहीं पता, एक नए से शुरुआत करते हैं. इट विल बी इजियर फॉर मी टू टेल यू. अगर आपको पता होगा ना ये सब तो मुझे पता है, सिर्फ थोड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, मदर नहीं पता था. जस्ट थिंक दैट यू डिडंट नो एनीथिंग. आज आप वर्ब फैमिली को देख रहे हो पहली बार विथ ऑल द 7 मेंबर्स. ओके, and the mother form is the first member, that's a guardian. उसके बाद है present 1, उसके बाद है present 2, then है past, then है present participle, then past participle, and then infinite form. So there are 7 members in verb family. Okay? कुछ चीजें आप लिख लेना ताकि आपको भी on the spot करने में थोड़ा easy हो. शॉर्टकट में सब कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिएगा. अभी हम लोग जाएंगे एक एक वर्ब के पास और उसके पूरी फैमिलीज को देखेंगे.
Okay, we'll go to each, some different verbs और उनके सारे different forms को देखेंगे कि mother कौन सा है, present one कौन सा है, present two कौन सा है. So जो लोग अभी ज्वाइन किए मैं बता दूं आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब फैमिली. और अभी अभी हमने जाना कि वर्ब फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं और 7 मेंबर्स में जो लोग आते हैं उनको हम फिर से देखेंगे. तो हम लोग अभी फिर से मैं शेयर कर रहा हूं आपको. तो ये है वर्ब फैमिली. तो अभी आप अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो इसका एक स्नैपशॉट आप खींच सकते हो. So mother, present one, present two, past, present participle and infinite form. So guys, we are going ahead. Okay. So right now we will see the example of the verb called do. You all know that do is a verb and do is the mother form. Always remember. Do is the mother form. जो उसका main form है उसको हम लोग mother बोलते हैं. अगर किसी को डाउट हो मदर को लेके तो हमेशा दिमाग में रखिएगा किसी भी वर्ड के साथ आप अगर ing को जोड़ सको तो वो मदर है. जैसे यहाँ पे do है और do के साथ हम ing जोड़ सकते हैं. So do is the mother form. तो हमेशा दिमाग में रखिएगा do is the mother form. अब इस do का प्रेजेंट वन कौन है? इस do का प्रेजेंट वन है do. एग्जैक्टली सेम है. नाउ विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टू. प्रेजेंट टू थोड़ा सा डिफरेंट है. वी कॉल इट does. नाउ विल गो फॉर द पास्ट फॉर्म. सो आप लोग कोई बता सकते हो पास्ट क्या होगा इसका? Did. Yes, past form is did. Present participle? Done. Done. Doing. Present participle is mother form plus ing. ing. Doing. Present participle is doing. What will be the past participle? Done. Done. Yes, past participle is done. And what is infinite form? Will do. Infinite form is to plus mother form. To do. To do. Yes, to do. अब देखोगे बहुत समय सेंटेंस में सारे वर्ब लग जाते हैं लास्ट में टू डू समथिंग और टू एक्सेस टू ड्रिंक समथिंग, टू फील गुड. टू उसके बाद मदर फॉर्म लगता है. उसके बारे में विल लर्न इट लेटर. सो ये एक फॉर्म है जिसे इनफाइनाइट फॉर्म कहते हैं. सो गाइस, दिस इज द वर्ब फैमिली ऑफ डू. You can see there are 7 members starting from mother, present one, present two, past, present participle, past participle, infinite form. Okay, so there are 7 members. Any question? Please stop me. Okay, let's go ahead then. Okay. Now guys, one exception is there. Exception का मतलब क्या होता है? Yes, anyone? Alada. This may not be applicable. Pithok. Principle is not applicable. Apwad. थोड़ा different word, मतलब अपवाद बोलते हैं इसको. थोड़ा different है. सिर्फ यही verb, सिर्फ एक verb है जो सबसे अलग है. सब वर्ब के 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो वर्ब आपके सामने मैं अभी लाने वाला हूं इसके 9 फॉर्म्स हैं, 9 फॉर्म्स. इसे हम लोग एक्सेप्शन के रूप में मानते हैं क्योंकि कोई दूसरे वर्ब में ऐसा नहीं होता है. So there is only one single verb जिसे हम बोलते हैं be verb. Have you heard about be verb? Yes, sir. Yes, sir. Am is are.
ओके सो अभी आप भूल जाइए, अभी बी में 9 मेंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मदर फॉर्म टू इनफाइनाइट फॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से फॉर्म है। नॉर्मली हर जगह हमने देखा है प्रेजेंट 1 एंड प्रेजेंट 2, लेकिन इसमें प्रेजेंट 3 भी है। Is, present 1, present 2 am and present 3 are. Is, am, are. There are 3 presents. हमने देखा है कि पास्ट एक होता है, लेकिन बी के 2 पास्ट होते हैं। एक होता है was और एक होता है were। आई नो कि आप लोगों में बहुत लोगों को ये सब ऑलरेडी पता है, लेकिन इससे एक जगह सारे वर्ड फैमिली को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ व्हाट विल बी द प्रेजेंट पार्टिसिपल? Being. You know, mother form plus ing. Being. What will be the past participle? Been. Been. B-E-E-N. And infinite is To be. To be. Will to be. be. So guys, this is the exception only. There are 9 members in B family. Please, if you want, you can take the snapshot so that you can save it in your mobile also. Okay. So guys, any question till now? अभी तक कोई question या किसी के सर से ऊपर से अगर जा रहा है तो प्लीज हमें बताएं। No, sir. दिमाग तो लगाने का ही नहीं है। हमने देखा कि एक वर्ड फैमिली है जिसमें 7 members हैं, and we are talking about all the 7 members. Anybody has any question? Yes, Savita ji, ask. You have to unmute yourself. Unmute. Sir, show the slide again. Show the previous slide. I'll show it. मैं सोचा कि slide छोड़ के अगर कोई question है तो आप कर सकते हो. Okay, this is the slide again. सर ये जो 9 वाला जो आपने बोला है, तो इसको फिर से आप एक बार रिपीट कीजिए थोड़ा। मैंने ये बोला कि नॉर्मली एक वर्ड फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं। मदर, प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इनफाइनाइट फॉर्म। सारे वर्ब के 7 ही फॉर्म्स हैं। सिर्फ ये एक फॉर्म है जिसको हम लोग बी बोलते हैं। बी एक वैसा वर्ब है जिसमें 7 नहीं बल्कि 9 फॉर्म है, मतलब 2 एक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं। तो वो 2 कहाँ एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं? एक प्रेजेंट में बढ़ रहा है और एक पास्ट में बढ़ रहा है। मतलब नॉर्मली हमें पता है कि प्रेजेंट 1 प्रेजेंट 2 होता है। बी में प्रेजेंट माने इज, एम, आर 3 प्रेजेंट होते हैं और पास्ट होता है 2, वॉज और वेयर। और देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनफाइनाइट फॉर्म, वो तो सब में सेम रहता है। तो बी थोड़ा सा अलग है दूसरे वर्ब के हिसाब से। बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। वी आर जस्ट सीइंग कि कौन कौन से वर्ब के कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं। थोड़ा आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, चलो एक नया वर्ब पढ़ेंगे अभी। लेट्स सी द वर्ब कुक। So what will be the present form 1? Cook. Same as mother form. एकदम मदर जैसे दिखने में है, ये बच्चा भी एकदम सेम दिखने में है, लेकिन दोनों अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। एक मदर है और एक है प्रेजेंट फॉर्म 1। प्रेजेंट फॉर्म 2 क्या होगा? प्रेजेंट फॉर्म 2 कुक्स। पास्ट फॉर्म cooked. Present participle Cooking. yes. Past participle cooked. Infinite form is To cook. very good. So this is the verb family. Nothing, दिमाग लगाने का ही नहीं है। These are the word family members. बस हमें सारे फॉर्म्स के को दिमाग में रखना है। ये दिमाग में रखिए हमेशा। ओके, एक काम करते हैं। I'll be asking some, मैं सबको एक एक वर्ब दे रहा हूँ, ठीक है?
आप उसका वर्ब फैमिली निकाल के यहाँ पे मैंने मुझे शेयर कीजिएगा बोल के। सो अन्वेषा, सबको मैं अलग अलग दे रहा हूँ। अन्वेषा, योर वर्ब इज डू, DO, योर वर्ब इज डू। तो डू का सारा वर्ब फैमिली निकाल के रखो, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। वर्ब फैमिली, मदर, डू का मदर कौन होगा, डू का प्रेजेंट वन कौन होगा, लाइक दैट यू ट्राई टू अरेंज। क्लियर अन्वेषा? Yes, yes, sir. Okay, do that. Okay, Shraddha, your verb is kill, KILL, kill. Okay. Dinobandhu, your verb is focus, focus. Okay, Neha ji, your verb will be succeed, succeed. Okay, Rishita, your verb will be wear. You know, wear, WEAR, wear. अगर मीनिंग नहीं पता हो तो मुझे बोलिएगा। ओके, वर्षा जी, योर वर्ब इज गो। ओके, नितिश, योर वर्ब विल बी स्पीक, स्पीक, SPEAK, स्पीक। अभिषेक, योर वर्ब विल बी राइट। ओके, राइट, WRITE, राइट। चंद्रशेखर जी, योर वर्ब इज water, WATER, water. Okay. Archana ji, your verb will be decorate, 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 decorate. Ravikant ji, your verb will be see, SEE. Okay, just a minute. All the verb family members. Focus. Please, I'm requesting everyone to please go mute. Only the speaker will be switching on the, microphone. Yes, Dinabandhu, go ahead. Focuses. Present participle is focusing. Past form is focused. Past participle form is focused. Infinite to focus. Okay, very good, very nice, very good. Yeah, Neha. Your voice is not reaching. Unmute yourself, please. Yes, sir. Are you able to hear me now? Yeah, fine. Sir, succeed, succeeds, succeeded, succeeding. I didn't get the past one, as I was thinking on that. Like past participle. It is again succeeded, I feel. Yeah. And then to succeed. Very good. So you have spoken everything, no? Everything. All are right. Past and past participle both are succeeded. Okay. Okay, Rishita. Yes, sir. Where, where's, wore, WORE, Very good. wearing, worn, Yes. WORN, worn, Very good. to wear. Very good. Very nice. Yeah, Nitish. Your voice is not reaching. Yes, Nitish. It's sir. My voice is audible now, sir. Yeah, audible. Voice is audible now. Yeah. So it's speak is the mother form. So speaks, then speaked, then speaking, then spoken, and then to speak. Okay, I think the past form you have written that is wrong. That will be spoke. The past will be spoke, and the past participle will be spoken. That is right. Rest all the words are right. Okay. Past form is spoke. Past is spoke. Yeah, Abhishek. Yes, sir. Yeah. Write, mother form. Write, writes, wrote, writing, written, to write. Very good. Very nice. Yeah, Chandrasekhar ji. You unmute. Yes. Okay. Mother form is water. Then present form 1, water. Then waters. Then watered, watering, watered, and infinite form is to water. Very good. Very nice. Yes, Archana ji, go ahead. Decorate is mother
mother form decorate to decorate. Okay, so थोड़ा voice fluctuate हो रहा है. It's decorate mother है, decorate present one, decorates present two, decorated past, Yeah. decorating, Yeah. फिर decorated, फिर to decorate. Yeah. ठीक है? To Very good. decorate. Very Yeah. nice. Yeah, Ravikant ji. Yes, sir. So my mother form was see, its verb was given see. See. So present one is see, then second is see, Sees. then past sees. Okay. हाँ. So we can add sees. Okay. Past. Now past. Past is saw. Past is saw. Present participle is seeing. Past participle is saw, and infinite is to see. Very good. Very nice. Yeah, Arvind ji. Yes, sir. Forget, forgot, forgetting, forgotten, to forget. Very good. Very nice. सब लोग साथ साथ बोल रहे हैं कि छह बोल रहे हैं. कभी कभी मुझे लग रहा है कि 6 बोल रहे हैं बहुत लोग. You have to consider the mother also. Yeah. Okay. Fine. Savita ji. Mother verb is clean. Mother is clean. Then clean, cleans, cleaned, cleaning, cleaned, to clean. Very good. Very good. आई होप कि आप अकेले अकेले कर रहे हो, आपको इधर उधर से कोई सपोर्ट शायद नहीं मिल रहा है, यही मैं आशा करता हूँ. ओके, चलिए एकदम सब अकेले अकेले कीजिए. तो या साक्षी जी, योर सेंटेंस, योर वर्ड्स. Mother verb is sleep, sleep, sleeps, slept, sleeping, slept, to sleep. ओके, पास्ट क्या बोला आपने? Slept. पास्ट इज स्लेप्ट. और पास्ट पार्टिसिपल? No sir, past is slept. Slept और participle. स्लेप्ट नहीं होगा, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों स्लेप्ट होगा. Slept. यस, दोनों स्लेप्ट होगा. गाइस, जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये सबके लिए है, ठीक है, सिर्फ एक जन के लिए नहीं है. तो अपनी बगल में थोड़ा दिमाग खोल के रखिए. सो स्लीप का पास्ट स्लेप्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी स्लेप्ट होता है. ठीक है, फाइन. Okay, so we are left with Shraddha has spoken. Varsha. Mother form is go, then go, goes, went, going, gone, to go. Very good, very nice, very good. I think बाकी लोग स्विच ऑन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप लोग स्विच ऑफ तब अपने वीडियो को ऑफ करके रखोगे तो मैं शायद नहीं पूछ पाऊंगा आप लोग. So, अगर आप में से जो लोग अभी वीडियो बंद किए हुए हैं, अगर आप ऑन करोगे then we can talk, otherwise हम लोग आगे बढ़ेंगे. या प्रणव, गणेश, जय, you would like to speak? या प्रणव, would you like to speak? Hello. हाँ प्रणव जी, आप बोलोगे? No sir, I'm Ganesh sir. नहीं, आप प्रणव, अच्छा गणेश, अच्छा मैं प्रणव और गणेश दोनों को देख रहा हूँ. अच्छा गणेश जी, हाँ आप बोलोगे? हाँ सर, first form is a brain, second form is a broad, and third form is a broad also. आपको मैंने क्या दिया था? मेरे को नहीं, मैं आज ही मैंने ज्वाइन किया है, कल किया था, लेकिन कल डिस्टर्बेंस कैसे. नहीं, जो हमने आज कर अभी तक हमने ओके गाइस, मैं एक बार फिर आपसे रिपीट करूंगा. मदर और प्रेजेंट दोनों देखने में सेम है, तो कैसे समझोगे? अगर वर्ब अकेला आता है लाइक कुक, गो, किल, तो वो प्रेजेंट होगा. लेकिन अगर वही वर्ब किसी दूसरे वर्ब के साथ आता है लाइक कुड कुक, कैन कुक, शैल कुक, इन दिस केस दिस कुक विल बी द मदर फॉर्म. मतलब प्रेजेंट फॉर्म कभी भी आता है तो वो अकेला आता है, और कभी भी मदर आता है तो किसी दूसरे वर्ब के साथ आता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुक इज द मदर फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक सविता जी ने भी यही क्वेश्चन किया कि कहीं कहीं तो देखा गया है, जैसे गो, गो का पास्ट होता है वेंट और पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन. तो यहाँ पे वेंट एंड गॉन दोनों अलग है.
लेकिन बहुत वर्ब में आप देखोगे, प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, बहुत वर्ब में आप देखोगे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों अलग है, दोनों सेम है, सॉरी दोनों सेम है, तो कैसे समझोगे? तो उसका भी ऑलमोस्ट सेम फंडा है। जब पास्ट आता है ना तो वो अकेला आता है, लाइक यू कुक्ड राइस, पास्ट कभी भी जब आता है तो वो अकेला आता है। सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस जो सिर्फ टाइम बताता हो, बीन कुक्ड, यस यू कुक्ड राइस। लेकिन अगर आप यू हैव बीन, you can see you have cooked rice, you had cooked rice, you will have cooked rice, यहाँ जो cook आप देख रहे हो, cook cook cook, ये सारे past participle है। in short past हमेशा अकेला आता है एक सेंटेंस में, और वो टाइम बताता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस का। और जब पास्ट पार्टिसिपल आता है तो वो टाइम नहीं बताता है, इसीलिए वो चेंज नहीं होता है, वो कुक का कुक्ड ही रह जाता है। चाहे आप उसको प्रेजेंट में बोलो यू हैव कुक्ड, वो कुक्ड चेंज नहीं हुआ। फिर उसको अगर पास्ट में कर दो यू हैड कुक्ड, तो यहाँ पे देखो हैड टाइम बोल रहा है लेकिन कुक्ड चेंज नहीं हो रहा है। चलो इसको फ्यूचर में बोलते हैं, यू विल हैव कुक्ड राइस, यहाँ पे भी देखो वो कुक्ड ही है, दैट इज नॉट चेंजिंग। सो ये है पास्ट पार्टिसिपल। Anyone having any doubt, please let me know right now. Yes, सविता जी क्लियर है? yes. पास्ट आएगा तो सिंगल आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो उसके पहले वर्ब रहेंगे, लाइक हैव, ये सब वर्ब्स रहेंगे, हैज, हैड, ये सब वर्ब रहेंगे। सर यू हैव बीन कुक्ड राइस, वो एक अलग सेंटेंस है। यू हैव कुक्ड राइस भी होता है, ठीक है, यू हैव कुक्ड राइस, यहाँ पे जो कुक है वो पास्ट पार्टिसिपल है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? স্যার या निशा, এটা প্রেজেন্ট আর পাস্টের মধ্যে ডিফারেন্স, মানে রিভার্সটা হচ্ছে, মানে অপোজিটটা। of course present is present, past is of course different. we are talking about, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट और मदर दोनों सेम देखने में है না আমি ওটা বলছি না, আমি বলছি প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে যখন অনলি গো মানে অনলি ভার্বটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, আর উইল গো হলে সেটা মাদার ফর্ম, কিন্তু পাস্টের ক্ষেত্রে that go will be mother, go will be mother। सर फिर बीन कब लगता है? will be mother। सर बीन कब लगेगा? और बीन वो बाद में आएगा, अभी बीन हमको पता नहीं, आपको भी पता नहीं है बीन क्या होता है, हम लोग सिर्फ वो पढ़े हैं बीन। वो बीन क्या होता है ना, जो बी फैमिली का जो पास्ट पार्टिसिपल है वही बीन होता है, इतना ही जान के रखिए आप, उसको अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। क्या होता है ना, जब भी हम लोग कुछ सीखते हैं ना, लगता है कि और सीखे सब जान जाए एक बार में, लेकिन हम लोग धीरे धीरे चलेंगे ना, धीरे धीरे गाना भी है कि धीरे धीरे से ही सब कुछ अच्छे से होता है। तो ज्यादा डिटेल में गाना नहीं गाएंगे, टाइम चला जाएगा नहीं तो। सो एकदम धीरे धीरे से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है सविता जी, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी यही दिमाग में रखिएगा, जो बीन है वो बी का पास्ट पार्टिसिपल है, बस उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्या है कैसे यूज करेंगे ये सब हम बाद में बात करेंगे। So guys, till now it is clear, right? Verb family, then the difference between mother and present, difference between past and past participle. Shraddha, it is clear? Okay. Okay. चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। If you want कि ब्रेक वेक लिया जाए तो मुझे बोलिएगा, आई विल गिव यू द ब्रेक। Okay, so you can see here past verb is a single verb in a sentence, she made a toy, but past participle comes with other helping and auxiliary verb, like she has made a toy। यहाँ पे जो आप made देख रहे हो
ये जो मेड आप देख रहे हो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है कि जब सिंगल आए तो वो पास्ट होगा, जब और भी दूसरे वर्ब्स आए तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। मतलब ये जो मेड है वो पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट and we call it verb partnership. Verb partnership, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वर्ब पार्टनरशिप। चलिए इस बारे में देखते हैं आगे जाके। गाइस, पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर, दोस्ती, एक रिलेशनशिप। पार्टनर्स वो होते हैं जो हमेशा साथ रहना पसंद करते हैं। जब हम जिसके साथ रहना चाहते हैं अगर वो हमारे बगल में नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर हो वो हमेशा मेरे बगल में बैठे, मेरे बगल में रहे। वैसे ही वर्ब पार्टनरशिप में भी कुछ वर्ब ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बगल में सिर्फ यही लोग बैठे। तब एक वर्ब एक दूसरे वर्ब को पार्टनर मानता है। तो मैं आपको अभी कुछ वर्ब्स दिखाऊंगा, प्लीज अच्छे से उसको देखिएगा, अगर जरूरत पड़े तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा चाहता है कि मेरे बगल में अगर कोई वर्ब बैठ रहा है तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। We are talking about verb partnership. My dear friend, अगर आपको इंग्लिश करेक्टली बोलने में तकलीफ होता है या अगर आपको डाउट होता है कि बॉस मैं इंग्लिश बोल तो लेता हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा चलता है तो एक मैं बता दूं, ये वर्ब पार्टनरशिप जानने के बाद आप कोई भी सेंटेंस गलत नहीं बोलोगे, दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से इसको अच्छे से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बी वर्ब मतलब याद कीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन, बीइंग, ये लोग जब भी आएंगे और ये वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब बैठेगा तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाली फॉर्म जो हमने तो बी फॉर्म कभी भी अगर आए तो उसके बगल में आंख बंद करके आप आईएनजी वाली वर्ब लगा दीजिएगा, वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कभी भी बी वर्ब आए उसके बगल में जो वर्ब बैठता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैठना पड़ता है। Guys, are you all understanding this fact? आप सुने होंगे जब भी हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये जो पहला हाउ मेनी वर्ब्स आर हियर? दो वर्ब है, एम और गोइंग। जो पहला वाला वर्ब है वो है एम और एम आया है बी वर्ब से, याद कीजिए बी वर्ब से, और बी चाहता है कि मेरे बगल में जो भी बैठेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इसीलिए आई एम गोइंग हो रहा है। आई नो माय डियर फ्रेंड कि आप लोगों को ये पता है कि आई एम गोइंग होता है, मैं बता रहा हूँ आई एम गोइंग क्यों होता है। कोई चीज होता है और कोई चीज क्यों होता है, उसके वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों होता है। आई एम गोइंग ही होता है, आई एम गॉन नहीं होगा कभी, क्योंकि एज पर वर्ड पार्टनरशिप मैं अगर कोई इज, एम, आर लगा रहा हूं तो उसका जो नेक्स्ट वाला वर्ब होगा that will always be present participle. Is it clear my dear friend? Please, किसी को clarity नहीं मिली तो मैं फिर से बोलूंगा। Sometime in speaking we usually say I am gone. It's incorrect. Somebody who is speaking, Ravi. Ravi. Okay. मैंने बोला ना कि आप कुछ नहीं जानते, आप एकदम फ्रेश बैठे हो। ठीक है, हम लोग वन बाय वन सब चीज को टच करेंगे। आज के डेट में हम लोग सीख रहे हैं
I am gone, I don't know कहाँ पे लगता है, but I am going is the right sentence. Yes. I am going is the right sentence. I am gone होगा तो वो sentence गलत हो जाएगा. I am went होगा तो गलत हो जाएगा. I am going is the right answer. थोड़ा आगे बढ़े अभी. Okay. Yes, sir. Okay. Next. Have verb. Have verb का जो पार्टनर होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है. इसका मतलब है have का जो पूरा वर्ड फैमिली है, हमने अभी तक have verb किया नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि मदर होगा have, प्रेजेंट वन होगा have, प्रेजेंट टू होगा has, पास्ट होगा had, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा having, पास्ट पार्टिसिपल होगा had और इनफाइनाइट फॉर्म होगा to have. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई have वर्ब बैठता है, उसके बगल में कभी भी कोई वर्ब अगर बैठेगा तो वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही होगा. पास्ट पार्टिसिपल मतलब have के बगल में अगर पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. Guys, this is clear. Yes, sir. For example, एक example लेते हैं, like I have going. I have going. Sakshi, is it the right sentence? I have going. No, sir. What will be the right sentence? I have gone. I have gone. Why? Because as per word partnership, have के बगल में हमेशा past participle होगा. तो I have going नहीं होगा, I have gone होगा. Okay. I hope everyone is clear. Yeah, Jaya, are you understanding this? Okay, let's go ahead. Savita ji, you are getting this? सविता जी, हम लोग अभी ओके एक बार लास्ट में ट्राई कर रहा हूँ. हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप मतलब एक वर्ब के बगल में दूसरा जब कोई वर्ब बैठेगा तो वो कौन बैठेगा. वो समझी वो सर आपने अभी हैड का भी बोला ना, हैज हैड. हाँ, तो जो भी हो, हैड बैठे कि हैज हैड गॉन कैसे होता है? हैड गॉन भी होता है, हैज गॉन भी होता है और हैव गॉन भी होता है. कब होता है, कैसे होता है? ऑलरेडी पास्ट है ना. हैड गॉन. हाँ, तो हैड जो है वो पास्ट है. हाँ. और गॉन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है. वो पास्ट नहीं है जो पास्ट, हम समझ रहे हो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट जो टाइम बोल रहा है पुराने टाइम जो हो गया है, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका मतलब नहीं है कि वो पास्ट है. पास्ट पार्टिसिपल एक नाम है उसका, वो टाइम नहीं बताता, वो पास्ट पार्टिसिपल है. कभी भी अभी फिलहाल दिमाग में आप ये रखिए कि कभी भी आप अगर हैज या हैड या हैव बोलेंगे, उसके बगल में अगर आपको गॉन मतलब गो यूज करना है तो वहां पे हमेशा गॉन ही होगा. हाँ, वो आया समझ में. सर यू मीन टू हैड भी यूज करते हैं ना. हाँ, बोलिए सविता जी. हाँ, कभी-कभी हम लोग हैड भी यूज करते हैं ना. हाँ, हैव, हैड, हैज कुछ भी लगाइए, उसके बगल में आप अगर कोई वर्ब लगाएंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल मतलब गॉन या डन ये होगा. अब ये कैसे होगा या क्यों होगा उसके बाद हैव हैड ये जो है, तो इसको देख के हम लोग सेंटेंस जो मतलब नेक्स्ट वर्ड आएगा, नेक्स्ट वाला जो वर्ब है वो इसके हिसाब से बैठेगा. इसके हिसाब से बैठेगा. राइट. अगर इसके हिसाब से नहीं बैठेगा तो वो सेंटेंस गलत हो गया. ये लोग पार्टनर्स हैं, ये लोग हमेशा साथ बैठते हैं. अगर ये लोग साथ नहीं रहेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कभी डाउट क्लियरिंग के अगर टाइम होगा तो विल टॉक अबाउट दैट. वैसे ही एक वर्ब होता है जिसको हम लोग डू वर्ब बोलते हैं, जैसे डू, डिड, डज.
कभी भी अगर डू फॉर्म कहीं पे बैठता है और उसके बगल में अगर आपको कोई वर्ब अगर बैठाना है, अगर बैठाना होगा, तो वो हमेशा मदर फॉर्म में होगा। डू वर्ब के बगल में कभी भी कोई वर्ब होगा तो वो हमेशा मदर फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। ओके, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं टेक्निकली किसके बगल में कौन बैठ सकता है, और इसको ज्यादा याद करने का नहीं है बिल्कुल, बिकॉज ये 4 पार्टनरशिप है, ये 4 को याद रखने हैं बस। सर एग्जाम्पल ऑफ डू वर्ब। अच्छा, एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं मैं मार्केट गया था, तो मैं बोल सकता हूँ आई वेंट टू मार्केट। लेकिन अगर मुझे इसको किसी को एम्फेसिस करने के बोलना है, किसी को मतलब जोर लगा के अगर मुझे बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा? बॉस आई डिड गो टू मार्केट, आई डिड गो टू मार्केट। तो मैंने क्या किया? डिड लगाया और उसके बगल में मैंने वेंट नहीं लगाया, क्योंकि डू के बगल में मदर फॉर्म होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? आई डिड गो टू मार्केट, आई डिड गो टू मार्केट। इसको बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, उसको हम लोग जोर लगा के बोलते हैं, यस आई डिड गो टू मार्केट। करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स मतलब होता है जैसे विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड। ये जो वर्ब्स है ना, इसको मोडल वर्ब बोलते हैं, याद रखिएगा हमेशा। मोडल वर्ब्स will, shall, can, could, may, might, must, would, should। मोडल वर्ब अगर कभी भी बैठेगा ना, तो उसके बगल में भी मदर ही बैठेगा। हमेशा मोडल वर्ब्स के बगल में मदर ही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू मार्केट, आई शैल ईट राइस, आई कैन डू दिस। तो यहाँ पे आई कैन डू दिस, ये जो डू है ये मदर है। आई कुड डू दिस, मैं कर सकता था, कुड लगाया, लेकिन उसके बगल में मैंने मदर लगाया, आई कुड डू दिस। ये पार्टनर वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर पार्टनर वर्ब अगर आप जानते हो, तो कभी भी आप मतलब जानबूझ के तो इंग्लिश गलती नहीं बोलेंगे। हमेशा पार्टनर के बगल में पार्टनर रखोगे और सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। सर मॉडल वर्ब्स एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या है? मॉडल वर्ब्स होता है जैसे विल, शैल, कैन, कुड, ये लोग को मॉडल बोलते हैं। इसका कोई वर्ब फैमिली नहीं होता है। जैसे सबका वर्ब फैमिली होता है ना, तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, मॉडल वर्ब्स के फैमिली नहीं होती है। जैसे मदर हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो मॉडल वर्ब्स जो है जैसे विल, शैल, कैन, कुड, ये सबका कोई फैमिली नहीं है। सर ये जो ऑक्सिलरी है वही मॉडल वर्ब है ना? ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स नहीं है, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ये ऑक्सिलरी मतलब ये मॉडल वर्ब के बगल में अगर कोई भी आप वर्ब लगाओगे तो वो हमेशा मदर फॉर्म ही लगेगा। सो गाइस, बस ये 4 आपको याद रखने हैं हमेशा। बी के बगल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैव के बगल में पास्ट पार्टिसिपल, डू के बगल में मदर फॉर्म, मॉडल वर्ब्स अगर आता है तो उसके बगल में मदर फॉर्म। ये 4 अगर आपके दिमाग में याद है, तो आप कोई भी सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो आप उसको निकाल लोगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये पार्टनर वर्ब कब आएगा? जब सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होंगे तभी। आर यू गेटिंग माय डियर फ्रेंड? पार्टनर वर्ब का कॉन्सेप्ट कब लागू होगा? जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है। ओके, लेकिन अगर सेंटेंस में एक वर्ब है तो वहां पे ये वर्ब फैमिली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक वर्ब के साथ दूसरे वर्ब का पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब सिंगल वर्ब हो तो वर्ब पार्टनरशिप को फॉलो हम नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार आपसे पूछ ले, अभी तक हमने बात किया है वर्ब फैमिली, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं।
सिर्फ एक में होता है 9 मेंबर्स, वो है बी फैमिली। और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनकी कोई फैमिली नहीं होती, लाइक विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब की फैमिली नहीं होती। फिर हमने बात किया है कि वर्ब पार्टनरशिप, मतलब कोई भी सेंटेंस में एक वर्ब के बगल में और एक वर्ब जब बैठेगा तो वो कौन बैठेगा। तो वो हमने अभी अभी देखा कि बी के बगल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, डू के बगल में मदर फॉर्म, हैव के बगल में पास्ट पार्टिसिपल, मॉडल वर्ब्स के बगल में मदर फॉर्म। ये क्लियर है सबको ना? अभी हम लोग बस एग्जांपल्स देखेंगे अभी। बस किसी को कोई पूछना है अभी तक तो प्लीज गाइस अभी पूछ लीजिए। सर एक बार पिछली स्लाइड रिवाइज करिए, पिछले मतलब स्लाइड्स बस दिखाइएगा एक मिनट। ओके, दिस इज द स्लाइड। ओके, डन सर। कैन वी गो अहेड? यस। रॉन्ग वर्ब पार्टनरशिप, रॉन्ग सेंटेंस, ये याद रखिएगा। पार्टनरशिप गलत हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे सिंगल वर्ब सेंटेंस। मतलब यहाँ पे पार्टनर वाला बात नहीं रहेगा, ठीक है। सिंगल वर्ब मतलब सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा। और मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैं आप सभी से पूछूंगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। She love me, this is the sentence, we call it she love me। okay, so अब मैं पूछूंगा श्रद्धा से। श्रद्धा, कैन यू टेल मी, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो she love me, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सर, she loves me आएगा। so very well, she loves me आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आई या यू छोड़ के कभी भी अगर ही, शी या कोई नाम आता है तो उसके बगल में हमेशा प्रेजेंट टू, हमने पढ़ा था प्रेजेंट टू वर्ब फैमिली में। श्रद्धा, यू नो प्रेजेंट टू? हाँ। या लव्स। सो कभी भी अगर ही, शी आता है या कोई नाम आता है तो उसके बगल में हमेशा लव्स होता है, लव नहीं होता। तो ये कुछ वन वर्ड सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग बात करेंगे अभी। नेक्स्ट आई विल बी आस्किंग टू दीनबंधु, ओके। Dinabandhu, tell me, she have a car. Is this sentence right, Dinabandhu? No, sir. What will be the right answer? Your voice is not coming to me. आपके पास सर past participle form that have, sir. The sentence here is she have a car. मुझे इसको एक ही verb के साथ correct करना है। I can put only one verb and correct this sentence. एक verb में sentence को clear आपको correct करना है। क्या होगा? Okay, Arvind Kumar. What will be the right sentence? She has a car. She has a car. We are talking about अभी one word का काम करेंगे, दो word में नहीं जाएंगे, only one word, कुछ भी हो जाए। Okay, Anisha, next sentence. Anisha, this sentence is right or wrong? Wrong. Okay, what will be the right sentence? They go to party. But मेरे को past में बोल रहा है, past में। Past sentence. Yes, past. अच्छा. They went to party. Very good. The sentence, right sentence will be they went to party. They went to party. My dear friend, हम कभी भी gone को single verb में use नहीं करेंगे। हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना कि gone is the past participle। और past participle कब आता है? जब उसके पहले have या has या had बैठता है।
तो कभी भी gone को सिंगल वर्ब सेंटेंस में मत बोलिएगा। तो सिंगल वर्ब में अगर हम कभी भी यूज करेंगे तो वो होगा went, gone नहीं। Okay, now I'll be going to the next person. Yes, Nitish Pandey will speak the next sentence. Yeah, Nitish, tell me, this sentence is right or not? It's wrong, sir. What will be the right sentence? It will be Raj knows me very well. Okay, very good. यहाँ पे हम know का इस्तेमाल मतलब present one को use नहीं करेंगे because this is a name, और कभी भी हम name का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे knows होगा। Very good. Guys, I know that you people you know all this. बहुत लोगों को ये सब already पता है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि मैं एकदम नीचे से जा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग में किसी को ये help करे। This is the only mindset that I have. Okay? अगर आपको पता है तो you are getting the correction. Yes, जो मुझे पता है वो right है. So you can take it in that way. Okay, next I'll be asking to okay, Shraddha. Have I asked you Shraddha already? I have asked you already. Okay, Savita ji. Savita ji, your sentence is butterfly fly high. Is this sentence right or wrong? Butterfly fly high. Butterfly flies high. Butterfly. Blue. मुझे present में ही बोलना है. I'll speak in present. Flies. Yes, absolutely. We know that's any singular form. Butterfly यहाँ पे ये flies हो जाएगा. Butterfly flies high. अगर यहाँ पे butterflies होता, more than one butterflies होते, तो वो fly होता फिर. Okay, next. Okay, next. अभी हम लोग challenging zone में आ रहे हैं. I know कि जब हम एक verb में बात करते हैं ना, तो it is basically very easy. हमें पता है कि I go to market, he goes to market, she goes to market. One verb is easy. Now we will go to multiple verb. अब multiple verb में जा रहे हैं तो याद करना वो partner verb will help. तो मैं एक एक करके पूछूंगा सबसे. So first I'll be asking to Ravikant Dubey. Always remember, wrong verb, wrong partnership, wrong sentence. She is loved me. She is loved me. Is this sentence right? Yes, the sentence is wrong. What will be the right sentence? She loves me. गलती कहाँ से हुआ? She is तक सही था? Yes, sir. तो आप सेंटेंस को चेंज मत कीजिए. जहां से गलती हुआ है वहां पे चेंज कीजिए. पूरे सेंटेंस को चेंज मत कीजिए. सेंटेंस में देखिए गलती कहाँ पे हुआ, वहां पे चेंज कीजिए. डोंट चेंज द होल सेंटेंस. Okay. Then we can remove is. She loved me. नहीं, मैं किसी को रिमूव नहीं करूंगा. जो सही है मैं उसको रिमूव क्यों करूं? She is तक तो सब सही जा रहा था. She is तक तो सब सही जा रहा था. तो अब जो भी चेंज होगा अगर गलत है तो is के बाद चेंज होगा, is के पहले चेंज नहीं होगा. What will be the sentence? She is loving them. Yes, of course. जहां तक सही है उसको क्यों चेंज कर रहे हैं? जहां से गलती है उसको चेंज कीजिए. और आपने she is loving आप जानते थे इसलिए बोले कि आपको याद आया वो पार्टनर वर्ब की is है और is के बगल में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल बैठता है, तो मैं ing लगा रहा हूँ. तो मैं बोलूंगा कुछ देर के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भूल जाइए और वर्ड पार्टनरशिप को दिमाग में रखिए. देखिएगा मजा आएगा और करने में. Okay. Now the next sentence I'll be asking to अर्चना जी. अर्चना जी आप अपने आप को म्यूट करके मुझे नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताइएगा. He has did his work. ये सेंटेंस गलत है कि सही है? It is wrong sentence, sir. What will be the right sentence?
He has done this work ओके, आपने डन यहाँ पे क्यों लगाया? because ये पास्ट के इसमें आएगा, इस हैज के इसके साथ जो है, सो मतलब यस, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि हैज का डिमांड है कि बॉस मेरे बगल में कोई भी पार्टनर बैठेगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल में बैठेगा, तो इसीलिए हमें वहां पे गॉन लगाना पड़ा। चलो, वेरी गुड। नाउ आई आस्क टू जया। जया, बी रेडी, अनम्यूट योरसेल्फ and tell me the next sentence. Yes, tell me. The sentence is right. Butterfly will be flying high. Flowing high, flowing क्या word होता है? Butterfly will be flying high. Fly high. बटरफ्लाई विल बी फ्लाइंग हाई। अभी आप देखो, आई डोंट नो आपने अभी वर्ब पार्टनरशिप को दिमाग में लगाया कि नहीं, लेकिन हमें पता है यहाँ पे आप देखो, देयर आर हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर जया? 3 verbs. 3 वर्ब्स। तो पहला वर्ब है विल। Will be. विल का पार्टनर कौन होता है? Be. नहीं, पार्टनरशिप में क्या पढ़े थे? विल के बगल में कौन बैठ सकता है? विल के बगल में मदर। मदर बैठा कौन है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपेट बैठा है। विल के बगल में कौन बैठा है? बी। बी बैठा है। बी मदर फॉर्म है? नहीं। तो बी क्या है जया? बी प्रेजेंट पार्टिसिपेट है। बी फैमिली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बी सबसे ऊपर में था, मदर फॉर्म। बी वॉज द मदर फॉर्म। फिर प्रेजेंट थे इज, एम, आर, पास्ट थे वॉज एंड वेयर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल था बीइंग, BEING। याद आ रहा है जया जी? सर आप जो लास्ट स्लाइड में जो बोले कि बी हैव एंड पार्टनरशिप जो पढ़े, तो वो पार्टनरशिप के हिसाब से बी मैं देखी हूँ। पार्टनरशिप में मैंने क्या देखा कि हैव अगर कहीं पे हैव बैठेगा तो उसके बगल में पास्ट पार्टिसिपल बैठेगा, कहीं पे अगर बी बैठेगा तो उसके बगल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बैठेगा, कहीं पे अगर डू बैठेगा तो उसके बगल में मदर फॉर्म होगा। वी स्टडीड लाइक दिस। तो मैं आपको उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि विल कहीं पे भी अगर बैठता है तो उसके बगल में कोई भी वर्ब बैठेगा तो वो मदर फॉर्म में बैठेगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि विल के बगल में बी बैठा हुआ है और बी हमें पता है कि बी मदर फॉर्म है। मदर फॉर्म है। मतलब ये पार्टनरशिप राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। राइट है। इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे बी। अब बी से पूछेंगे, भाई बी तू बता तेरे बगल में कौन बैठ सकता है? बी बोलेगा मेरे बगल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बैठ सकता है। लेकिन बैठा कौन था? पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे ही आपने वहां पे ING लगाया तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और एज पर वर्ब पार्टनरशिप ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये पता था कि विल बी फ्लाइंग ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों हुआ है, क्योंकि वर्ब पार्टनरशिप के डिमांड के हिसाब से वर्ब्स बैठे हुए हैं। आप लोग ये शक्ल देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा हो गया है। I really don't want to basically burden you, लेकिन मुझे अगर हाँ ये हो सकता है कि ये जो क्लास आप कर रहे हो ना ये लगभग 2 क्लास के समान है। मैं ये दोनों को मिला के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास और ज्यादा टाइम रहे। हम लोग सेंटेंस जब बनाने लगेंगे उस पर वर्कआउट करेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कैसे सेंटेंस करेक्ट होता है ये मैं समझा रहा हूँ आपको। Okay. So how to make your sentence right? Okay, so अभी next हम लोग जाएंगे वर्षा के पास। So yes, वर्षा, your sentence is this. Okay, ये तो हो गया already. Sorry. Yes, Varsha, your sentence is he will done this work. Done his work. He will be doing his work. Very good. As per verb partnership, will के बगल में
मदर बैठेगा, मदर बैठा हुआ है। बी के बगल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बैठेगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग डूइंग कर देंगे, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। ही विल बी डूइंग हिज वर्क। अब हर सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो सब अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, मीनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका सेंटेंस सही है कि नहीं। So how to know that my sentences are correct? We are talking about that. Okay, now we'll go to Rishita. Rishita, did the dog bark? This is the sentence. Tell me the right sentence. Did the dog barking? Did the dog barking? Did the dog barking? Very good. सर ये तो गलत है। आई यस थिंक गलत है। एक मिनट किसको इसे लगता है गलत है ये? हाथ से हाथ उठाए बस। Did the dog barking? ओके चलो एक चंद्रशेखर जी के पास जाते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या गलती है, क्या होने से बेटर होता है आपको लगता है? सॉरी सर, मदर फॉर्म बैठेगा, बार्क होगा। या चंद्रशेखर जी आप बोलिए। Did the dog bark? ओके, क्यों बार्क होगा यहाँ पे? Did है इसके लिए। सर पास्ट फॉर्मेट। हाँ पास्ट did है इसके लिए, वो वापस पास्ट नहीं आएगा। नहीं सर डू मदर फॉर्म है उसके, डू मदर फॉर्म नहीं, यहाँ पे सबसे पहले डू मदर फॉर्म है कौन बोला? अब पहले देखेंगे कि वो कहाँ पे है, अच्छे से देखिए यहाँ पे। पहला वर्ब, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ब? फर्स्ट वर्ब इज डिड। Does the dog bark? हाँ, पहला वर्ब है। पहले अच्छे से सुनिए इस चीज को। पास्ट है बोल के वहां पे बार्क हुआ नहीं, डिड है ये। पहला वर्ब है डिड। हमने आज पढ़ा था कि डू फैमिली का कोई भी अगर बैठता है तो उसके जो बगल में कोई भी वर्ब बैठेगा तो वो मदर फॉर्म होगा। आप लोग भूल जा रहे हो हमने क्या बात किया था। चलो एक बार पीछे दिखा देते हैं आपको। अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डू। कभी भी अगर डू वर्ब बैठेगा तो उसके बगल में मदर फॉर्म बैठेगा। सो गाइस, यहाँ पे जो सेंटेंस था डिड द डॉग बार्क होगा। डिड bark only. डिड क्या है? पास्ट है, मदर फॉर्म है नहीं। डिड हमने लगाया था क्योंकि ये पास्ट है, लेकिन डिड के बाद जब मैं कोई वर्ब लगाऊंगा तो वो मदर फॉर्म होगा। तो बार्क इज द मदर फॉर्म हियर। यस सी, हम लोग क्यों बैठा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया ऋषिता? वेरी सिली मिस्टेक यू हैव डन। यस सर, वेरी सिली मिस्टेक। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक विल स्पीक द नेक्स्ट सेंटेंस। यस Abhishek, tell me, is this right or wrong? She had went to school. Is this sentence right? No sir, wrong. क्या होगा right sentence? I had gone to sorry sir, she had gone to school. She had gone to school. क्यों आपने gone लगाया यहाँ पे? सर क्योंकि ये have verb है, इसी वजह से। had verb है तो हमने पढ़ा था कि have से कोई भी verb अगर आता है और उसके बगल में कोई verb अगर बैठता है तो वो past participle होगा। बस आप अगर पास ये पार्टनरशिप दिमाग में रख के अगर सेंटेंस देखोगे, लिखोगे या पढ़ोगे ना, तो आप गारंटी के साथ किसी को भी बोल सकते हो कि बॉस माय इंग्लिश इज 100% राइट। यू कैन फाइट विथ एनीवन। फिजिकल फाइट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइट ऑफ इंग्लिश। ओके, चलिए नेक्स्ट साक्षी। साक्षी, योर सेंटेंस इज she has been tried to do her homework.
Trying. She has been trying to her. She has been trying to do her homework. Why यहाँ पे trying आप क्यों लगा रहे हो? Because has been present participle. क्या है? Sir, has been. Has been है बोल के यहाँ पे ing लगेगा कि और भी आप Been. एक तो है कि tried के जो पहले जो verb है वो है been, right? Yes sir. और been चाहेगा कि मेरे बगल में कोई भी verb बैठे तो उसमें ing लगा हुआ हो. Yes sir. Very good. This is what I want. बस सीखने के लिए इतना मैं सोच रहा हूँ, अदरवाइज सीख गए तो बार बार इतना देखने का जरूरत नहीं होता है सेंटेंस. स्पेशली ये उनके लिए है जिनको एकदम सेंटेंस को पढ़ के या कभी कभी बोलने के टाइम डाउट होता है कि मेरे सेंटेंस गलत हैं. तो आप अगर ये पार्टनर वर्ब को फॉलो करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि योर सेंटेंसेस आर 100% राइट. Okay, now we'll go to the next person. We have कौन है जो मिस हो गया, जिस बोलना चाहता होगा? सब हो गया, सबको पूछ लिया मैंने. चलिए नेहा जी से पूछते हैं. नेहा, योर सेंटेंस इज she will has completed his task. Sorry, he will has completed his task. He will have completed his tasks. माने ये has को आप have बोल रहे हो, क्यों? Why? What is the reason? He will have होगा because here it is will is coming, na? Because will is a modal verb. Okay. So the modal verb, it will be in mother form. Yes, after every modal verb, we know कि we have to mention the mother form. Very good. So have आ गया. अब देख लो, बात का भी चेक कर लेते हैं. have के बगल में हमेशा past participle आएगा और past participle बैठा भी है. So now the sentence is 100% correct sentence. यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है तो आप on the spot हमें पूछ सकते हो. He will have completed his task. ये सब सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को मीनिंग पता है ये सेंटेंस है, बट ये मीनिंग इसका क्या निकलता है. He will have completed. What is the meaning of it? By that way, अगर मैं आपसे पूछूं, what is the meaning of this sentence that he will have completed his task? Neha ji, what is the meaning of this sentence? Basically sir, if we have to tell in Hindi, it's वो अपना काम कर चुका होगा is the meaning. कि मतलब ऑलरेडी ये काम हो चुका होगा, मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि ये कर चुका होगा वो काम. Yes, absolutely right नेहा जी. कभी कभी ना हम लोग फ्यूचर के दो सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मेरे पापा के घर पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा. कभी कभी हम लोग ऐसे दो फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं. पापा के का पहुंचना भी फ्यूचर और मेरा उनसे पहले पहुंचना वो भी फ्यूचर. तो जब आप दो फ्यूचर में बोलते हो, जो पहले होता है, जो फर्स्ट होता है, जैसे मैं पहुंच जाऊंगा, जो पहले होगा वो होता है ये सेंटेंस. तो वो सेंटेंस होता है आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर माय फादर रीच. आई शैल हैव रीच्ड होम. तो ये सब बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग टेंस को थोड़ा सा टच करेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब फैमिली एंड वर्ब पार्टनरशिप. तो अगर आप लोगों में किसी को भी डाउट है तो प्लीज मुझे अभी पूछे प्लीज. सर एक क्वेश्चन है. रवि कौन बोल रहा है ये? रवि. हाँ रवि बोलिए. सर लोग कभी यूज करते हैं आई हैव टू गो. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है रवि जी. आपका एक मिनट सर. सर वीडियो ऑफ कर दिया. आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. ओके. ये आई हैव टू डू. तो ये हैव के जस्ट बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है. फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म? मदर फॉर्म. मदर फॉर्म राइट. हमको तो नहीं दिखा यहाँ पे.
अच्छा, रवि जी ने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। तो यहाँ पे जो हैव के बगल में जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है, कोई बता सकता है? इनफाइनाइट फॉर्म। यस, ये इनफाइनाइट फॉर्म है, ये इनफाइनाइट फॉर्म होता है इसको, टू गो, टू वॉच, टू डू। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब जो होता है ना उसको हम लोग काउंट नहीं करते उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, इनफाइनाइट वर्ब को हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे एक सेंटेंस है, आई गो टू आई डू एक्सरसाइज टू टोन माई बॉडी, आई गो टू एक्सरसाइज टू टोन माई बॉडी। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है आई गो। ये जो टू टोन है, टू टोन माई बॉडी, ये जो टू टोन इनफाइनाइट फॉर्म है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। इंग्लिश ग्रामर में बोला जाता है इनफाइनाइट फॉर्म को हम लोग एज अ वर्ब सेंटेंस में काउंट नहीं करते। ये जो इनफाइनाइट फॉर्म होता है ये हमें हेल्प करता है एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकालने में, कि वो क्यों हुआ। आई गो टू मार्केट, क्यों मार्केट गया? टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। तो ये इनफाइनाइट फॉर्म है, इस बारे में हम लोग बाद में कभी अगर टाइम मिले तो बात करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इनफाइनाइट फॉर्म्स आर नेवर काउंटेड, आर नेवर काउंटेड इन अ सेंटेंस। तो कभी भी अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए जहां पे टू आ गया, टू के बाद वर्ब है, तो आप उसके बगल वाले वर्ब को कभी काउंट मत कीजिएगा, उसके पहले जो वर्ब है उनको काउंट कीजिएगा उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। ठीक है रवि जी? इनफाइनाइट फॉर्म का एक पूरा क्लास होता है, बात है कि हम क्या क्या चीज को लेके अभी बात करेंगे। जो शॉर्ट में हमको बोलना था मैंने बताया कि इनफाइनाइट फॉर्म्स को हम एक सेंटेंस में रहते हुए भी काउंट नहीं करते। ठीक है? So we are right now we are doing very simple sentences so that we can we can start speaking. जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा करेक्ट बोलना सीखे, मुंह से उसके जुबान से कभी गलत सेंटेंस ना निकले। We are trying take more examples. We are taking examples. So let's example for Annesha. Annesha, be ready. काफी इजी मिला था आपको, चलिए हो जाए चैलेंज। They will have be writing letters. Is this sentence right? No. What will be the right sentence? They will have been writing letters. अच्छा, यहाँ पे been होगा बोल रहे हैं आप। Why? Why been? Why been? Yes, but that is important ना। आपने बीन कैसे बोल दिया? जरूर कुछ दिमाग लगा के बीन बोला होगा, या कभी बचपन में सुने थे तो बीन बोल दिए। देखिए अकबर। Okay. Why been? Why? My question is why. Past participle of will have been বোঝাতে একটা টেন্স বোঝাচ্ছে। I don't know about tense. We have not done anything here. Tense. Okay, ভালো মতো বোঝো যেটা বলছি। আচ্ছা। Guys, there are 4 words. Will, have, been, writing. Will के बाद mother बैठेगा, और देखिए mother बैठा हुआ है have. Have is the mother. अब have को पूछेंगे भाई आपके बगल में कौन पार्टनर बैठेगा, तो have क्या बोलेगा? पास्ट पार्टिसिपल। इसीलिए ये यहाँ पे बीन बैठा है, क्योंकि बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल। ओके। अब बीन को पूछेंगे भाई आपके बगल में कौन बैठेगा, वो बोलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी फॉर्म, और ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म बैठा हुआ है। So now this sentence is 100% grammatically right sentence. Okay. Okay, let's I don't know whether we have a okay, fine.
ओके फॉर जया, जया को थोड़ा डाउट होता है तो इसलिए मैं जया को फिर से ये दे रहा हूँ। जया, योर सेंटेंस इज दिस, nowadays. not goes to church nowadays. Yes, जया जी बोलिए, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर? जया जी कितने वर्ब है यहाँ पे? 3 है। हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर जया? 3 है सर। 3 कितना, थोड़ा बताइए कौन कौन सा वर्ब है यहाँ पे? Does, go, does, goes और not. Not is not a verb. Verb means time, action. यहाँ पे not से कोई time और action नहीं मिल रहा है। Noun. Noun की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। We are talking Now, about. now, not noun, sir. Now. Now is not a verb. Only 2 verbs. There are only 2 verbs. The first verb is does. The first verb is does, and the second verb is goes. अब जया जी आप बोलिए, ये does के बाद जो goes है, ये right fit है कि wrong fit है? Wrong है सर। Wrong है सर। क्या होना चाहिए था? Go. क्यों? What is the reason? What is the reason? Okay. हमने पढ़ा था ना कि डू फैमिली से कोई भी अगर आएगा उसके बगल में मदर बैठेगा। क्या? Yes sir. याद कीजिए, हमने पढ़ा था वर्ब पार्टनरशिप में कि कभी भी अगर डू एक वर्ब है और उसके बगल में आपको कोई वर्ब बैठाना है तो दैट हैज टू बी मदर फॉर्म। दैट हैज टू बी मदर फॉर्म। तो यहाँ पे गोज मदर फॉर्म नहीं है, तो इसको अगर मैं ईएस को काट दूं तो अभी ये मदर फॉर्म हो मदर गया। फॉर्म है। तो इसीलिए ये सेंटेंस अभी राइट है। शी डज नॉट गो टू चर्च नाउअडेज। शी डज नॉट गो टू चर्च नाउअडेज। जय जी थोड़ा सा आप ना, अगर मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा तो उसको अच्छे से देखिएगा। मैं इसके थ्रू जाऊंगी सर, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको आप फिर से अगर हो सके इस वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं समझ पाई, मतलब अगर रिपीटेशन देखने के बाद भी नहीं समझ पाई तो आई विल पुट यू इनटू अदर बैच, वहां से मैं आपको फिर समझाऊंगा। सो जितना मेरे से हो सकता है आई विल डू इट। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर एक बार और रिपीटेटिव देखोगे तो शायद दिमाग में आ जाए। ठीक है सर, एक और एग्जांपल, मुझे मैंने गलती की थी पिछली बार। कौन बोला? सर ऋषिता जी। ऋषिता, हाँ टेल मी। अच्छा आपको आई सर डोंट वो नो। लास्ट वाला जो मुझे क्वेश्चन दिए थे वो एक बार दिखा दीजिए, मैं उसको स्क्रीनशॉट लूंगी। कौन सा वाला? लास्ट वाला सेंटेंस? ये ठीक है, does not go. But yeah, done. Okay guys, we'll go to the last example for Rishita, क्योंकि रिशिता ने छोटी सी सिली मिस्टेक की थी उसने। Okay Rishita, your sentence is this: she has took her breakfast. Tell me, is it right? Wrong sir. What will be the right sentence? She has taken her breakfast. अच्छा, taken. Why taken? Sir, has डिमांड करता है कि उसके बगल में पास्ट पार्टिसिपल है। Very good. जब भी हम कहीं पे भी has, have या had बैठाएंगे, उसके बाद में अगर कोई हम verb बैठाएंगे, that has to be past participle. See, we are trying easy sentences so that we can start. लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, वहां पे भी आप देखोगे सेंटेंस वर्ब पार्टनरशिप के हिसाब से बैठा हुआ है। आई नो दैट यू मे बी कुछ लोगों को ऑलरेडी ये सब पता था, लेकिन
हम आज बात किए कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि एज पर वर्ब पार्टनरशिप दिया गया है कि किसके बगल में कौन बैठेगा। अगर हम उसके हिसाब से बैठाएंगे तो सेंटेंस सही रहेगा, अगर हम उसके हिसाब से नहीं बैठाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गाइस हम लोग यहीं तक आज रखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा शायद मतलब ज्यादा हो जाएगा। यस अभी है क्वेश्चन आंसर सेशन। आई एम रेडी टू टेक एनी क्वेश्चन हियर, और जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर है और वो जाना चाहता है, he or she can leave. Okay, yes, any question? आप हैंड रेज करें, I will then ask question one by one. Please raise your okay. Varsha, tell me, ask me. सर वो विल बी फ्लाइंग वाला एग्जांपल फिर से रिपीट कीजिए ना। कौन सा? विल बी फ्लाइंग वाला। विल बी फ्लाइंग वाला मैं एक बार देख के करूंगा तो बेटर होगा। विल बी फ्लाइंग, विल बी फ्लाइंग, विल बी बटरफ्लाई विल बी फ्लाइंग। हाँ बटरफ्लाई, ये पहले क्या था? ये पहले ऊपर वाला सेंटेंस है जो पहले था, हमने उससे करेक्ट किया, बटरफ्लाई विल बी फ्लाइंग। तो आप एक बार देखिए, एक बार वर्षा जी, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर? ऊपर वाले सेंटेंस में बोलिए कितने वर्ब हैं? 3 वर्ब्स हैं, विल बी फ्लो। हाँ सर 3 वर्ब्स। ओके। तो पहला वाला वर्ब इसलिए बैठा क्योंकि हमको फ्यूचर में बोलना है, तो मैंने विल लगाया, ठीक है। अब विल के बगल में कभी भी कोई वर्ब अगर मैं बैठाऊंगा तो वो हमेशा मदर फॉर्म ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर बीन होता, यहाँ पे अगर बीन होता, फिर देखिए विल के बगल में हमेशा मदर फॉर्म बैठेगा, तो बीन इज नॉट द मदर फॉर्म। तो मदर फॉर्म क्या है? बी मदर फॉर्म है। तो इसीलिए विल बी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बी के बाद फ्लोन लिखा हुआ है, और हमने पढ़ा है कि बी के बगल में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल बैठ सकता है, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लाइंग लिख दिए हैं इसको, और अभी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम सही है। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। सबसे पहले क्या देखना है? कितने वर्ब्स हैं। अगर 2 वर्ब हैं तो एक पार्टनरशिप होगा, अच्छे से समझिए। अगर 3 वर्ब हैं तो 2 पार्टनरशिप होगा। अगर 4 वर्ब हैं तो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, 3 पार्टनरशिप होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पहला है कि कितने वर्ब हैं। 3 वर्ब हैं मतलब 2 पार्टनरशिप, इसके साथ इसका पार्टनरशिप, इसके साथ इसका पार्टनरशिप। अगर सारे पार्टनर सारे अगर राइट होंगे पार्टनर्स, तो सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो पार्टनरशिप को मैच करते हुए बोल रहा हूं। पार्टनरशिप गलत मतलब सब गलत। Yes, any doubt? Please raise your hand. I'll ask you. Okay, Annesha, ask me. লাস্টের আগের সেন্টেন্সটা goes to স্কুল নাকি একটা? Goes to school. Goes to church, sir. Okay, oh church हाँ she does. She does not goes. She does not goes to church. এটা she did not go to church church nowadays হবে না? Past যদি আমি পাস্টে বলতাম তাহলে তো did লাগাতাম না। I am not speaking in past, so why should I use did? I am speaking in present. मैं present में बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं does लगा रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं गई थी, मैं बोल रहा हूँ कि वो जाती है कि नहीं जाती है। वो नहीं जाती है चर्च में, इसलिए she के बगल में does है। और हमें पता है कि does do फैमिली का मेंबर है, और do फैमिली बोलता है भाई मेरे बगल में हमेशा मदर को लाना, तो इसीलिए ये goes नहीं होगा, ये go होगा। She does not go to church nowadays. वो आजकल चर्च नहीं जाती। Okay. Okay, any question? सर आपने बोला, Okay, आपने बोला 3 verbs है तो 2 partnership. आप बोलिए। 3 verbs है तो 2 partnership. Yes, 2 partnership. 2 verbs है तो 3 partnership. Yes.
4 वर्ब है तो 3 पार्टनरशिप। Okay, and 2 verbs? 2 वर्ब्स समझिए, इसके साथ इसका पार्टनरशिप, तो 2 वर्ब है तो एक ही पार्टनरशिप है, एक और बढ़ेगा तो 2 पार्टनरशिप हो गया। अभी पार्टनरशिप मतलब इसके साथ इसका पार्टनरशिप, इसके साथ इसका पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब हर एक वर्ब को पूछना है कि भाई तुम्हारे बगल में कौन बैठेगा, देख लो बैठा है कि नहीं। अगर नहीं बैठा है तो सेंटेंस गलत है, अगर बैठा है तो सेंटेंस राइट है। अगर सोचो 3 पार्टनरशिप है, 2 पार्टनरशिप राइट है लेकिन 3rd वाला पार्टनरशिप गलत है, तो सेंटेंस राइट होगा कि गलत होगा? यस, रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा। एक भी पार्टनरशिप गलत हुआ मतलब सेंटेंस इज रॉन्ग। ऑल द पार्टनरशिप शुड बी राइट। या रवि जी बोलिए। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन द 3 पार्टनरशिप, सो कैन वी रिप्लेस एनी ऑफ देम एनी टाइम? मतलब जब सेंटेंस सही करने के लिए हम लोग किसी भी को रिप्लेस कर सकते हैं, मींस अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। दिमाग में रखिएगा कि सेंटेंस में जो पार्टनरशिप है वो गलत ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई एग्जाम्पल देते तो मेरे लिए थोड़ा इजी होता। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल तो मुझे नहीं याद आ रहा मैं वैसे, आप अगर एग्जाम्पल मुझे बोलोगे तब मैं आपको और बेटर समझा पाऊंगा, लेकिन आप हमेशा चेंजेस कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद Yes, कहीं पे आपने पार्टनरशिप के हिसाब से कोई सेंटेंस नहीं बैठते हुए देखा है, इसीलिए ये सेंटेंस शायद आपके दिमाग में है, शायद। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि मतलब जब 3 पार्टनरशिप्स है, so we have to adjust 3 of them, मतलब we can adjust in। अगर एडजस्ट मतलब वो राइट होना चाहिए। अगर Right ऑलरेडी होना सही है, अगर ऑलरेडी कोई सही है तो क्यों करेंगे एडजस्ट? यस सर, सही है तो कोई गलत है तभी ना उसको करेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। सपोज मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैंने गलती से बोल दिया आई विल बी गॉन टू मार्केट, फिर दिमाग में आया अरे यार मैं आई विल बी गॉन क्यों बोला? आई विल बी के बाद तो आईएनजी लगना चाहिए था, आई विल बी गोइंग होगा। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारे दिमाग में एक प्रोसेसर बैठे जो हमें हमेशा इंस्ट्रक्ट करे कि तू गलत बोला, तूने सही बोला, तूने गलत बोला, तूने सही बोला। एक प्रोसेसर रहना चाहिए। तो ये जो वर्ब पार्टनरशिप है ये एक प्रोसेसर की तरह काम करेगा। लेकिन कब ये काम करेगा? जब आप इसको बहुत प्रैक्टिस करोगे तब, सो दैट जब कभी भी अगर गलत सेंटेंस निकल भी आता है तो आपका वो दिमाग बोल दे कि यू आर रॉन्ग हियर। यस। सो या दीनबंधु, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू। Okay guys, any question? Otherwise we are done for the day. I hope आज आपने कुछ सीखा and hope this will definitely help you. और हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे ये पीछे वाले कुछ चीजों को फिर से रिपीट करेंगे so that आपके दिमाग में रहे। और आपको मैं जो भी लिंक भेजता हूँ, अगर आपको वो जरूरत नहीं है तो बता दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस लिंक को एक और बार देखेंगे जब आपका क्लास नहीं रहेगा तो वो आपको और क्लैरिटी देगा। लिंक नेसेसरी है? लिंक नहीं, वो आप लोग डिसाइड करो, मैं तो भेजूंगा ही। आप एक ही चीज जब 10 बार करोगे ना तब वो आपकी आदत बनेगी। तो हो सकता है कि अभी आपका जो माइंडसेट है थोड़ा समझे हो, जो गैप्स हैं जब आप इसका रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो गैप्स फिल हो जाए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बाय द वे वर्कशीट भी होनी चाहिए। देखो वर्कशीट अलग से मैंने बनाया नहीं है, वो कभी हो सकता है कि अगर आप लोगों को चाहिए खुद काम करने के लिए तो आई कैन सेंड यू द वर्कशीट। वो दैट इज वो आपके प्रैक्टिस के लिए शायद अच्छा होगा। तो आई एम टेकिंग योर सजेशन, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? अगर वो आपको हेल्प करता है तो आई विल वर्क ऑन इट। बाय द वे आई रियली वांटेड टू नो दैट आज का क्लास हेल्प किया है थोड़ा बहुत? यस सर, काफी सर, और इसे जाके हमें मतलब वी शुड चर्न इट many times so that this will help you, like मतलब मुझे जब ये सब पता चला था मुझे लगा माय गॉड, मतलब ये जानने के बाद अगर मैं सेंटेंस का पार्टनर वर्ब चेक कर लूं तो मेरा कोई भी सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। दिस इज द कॉन्फिडेंस। आप जब कॉन्फिडेंट रहोगे आप
हो सकता है स्लो बोलोगे लेकिन करेक्ट बोलोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बैटरी। So that is the most important thing। बस अब बात है कि इसको नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे मंडे ट्यूसडे, तब तक ये पूरा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके लिए ये वीडियोस को जितना हो सके आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देखिएगा, सो दैट ये और ज्यादा क्लैरिटी आपको दे।